inequalities is imperative for inclusive development and for realizing the aspiration of India as a developed country. The Indian Constitution enshrines egalitarian principles such as social justice, equality, and non-discrimination, and made provisions of certain affirmative actions. Despite such need and constitutional mandate, certain sections of society are still experiencing insecurities, social and economic deprivations, discrimination, and excluded from mainstream development. Muslims of India has been one of the communities lagging behind in educational and economic development. Additionally, in the recent years, the community has faced an increased marginalization process, further amplifying the inequalities between Muslims and other communities in the country. The socio-economic and educational conditions of Muslims did not get much attention in terms of research and policy till the Sachar Committee revelations. The Ranganathan Mishra Committee and Post-Sachar Evaluation Committee further affirmed the findings of Sachar Committee report. However, all such research has largely been at a macro or a national level, touching the regional or state level deprivation in passing. The G. Sudhir Commission in Telangana in 2016 and the Mahmoodur Rahman Committee report 2013 are exceptions to this rule. Given this situation, the team and advisors who worked for the G. Sudhir Commission in Telangana have initiated this similar study for Uttar Pradesh. This study will be a situational analysis of Muslims, understanding, assessing and evaluating the socio-economic status and problems faced by the Muslim community and to suggest the policy measures to overcome the issues. The study will be primarily based on secondary sources of information and existing literature. Uttar Pradesh is the largest state in India in terms of numbers. It has the largest concentration of Muslims of various sects, castes, communities, and therefore the study will be of enormous relevance. The study would attempt to cover broad areas that affect Muslims' public life, livelihood, educational progress, economic mobilities, and factors that generate and add to further inequality. The study will be coordinated by the Center for Development Policy and Practice, which is located in Hyderabad, headed by our advisory council. And the core team and editors are Dr. Amirullah Khan, Professor Shaban, and Dr. Venkat Mutkuri. As I end the brief background, I would like to invite Dr. Mutkuri to continue the presentation. Thank you. Thank you. Good morning, all. Thank you. Okay, I just give you the situation of Muslims in Uttar Pradesh. What are the conditions and different dimensions of development and deprivation? How the community is faring in the context of Uttar Pradesh state. And okay, yeah. What we when we are thinking about how a society, any particular society, and we see that social diversity is important and every society must have a diversity, and in terms of people with different identities, caste, religion and any other kind of identities, that's a good desirable kind of thing for any society. But the undesirable process or outcome is that the inequality, social, economical and educational inequalities are undesirable, and every state in the welfare state context, what we are thinking is that a state must be a welfare oriented. Okay, every state must be. So in that context, we have to reduce the social, economical, educational inequality and
move forward for the development of each and every section of the society. So every community get equal opportunity, everyone from the every social group must get equal opportunity in terms of economic growth as well as educational opportunities. So here, but the real practice, reality in India is that India definitely a diverse country consisting of different socio-religious groups, but we have socio-economic and educational inequalities across different socio-religious groups identified by the religion, caste, location, gender. There are by different identities we have different levels of inequalities. So here the particular focus we are here in this, here what we are discussing is that the conditions of Muslims, what we have observed, after doing certain research and all, Muslims are one of these groups which are disadvantageous position in the country as well as in states, particularly in Uttar Pradesh context. Of course, at the India national level, we have seen Sachar Committee, Ranganath Mishra Committee and Post Sachar Committee led by Professor Kundu, and at the state level we have Muhammadur Rahman Committee in Maharashtra and Sudhir Commission in Telangana. All they have revealed the same thing, saying that across socio-religious groups, by religion and social groups, Muslims are as disadvantageous as that of SC/ST and Hindu OBCs. Okay? Yeah. So when we come to the Uttar Pradesh, it is actually having largest population count. In one of the state with the largest count of population and geography, of course, one of the largest in India. The state is agriculturally rich and relatively better in irrigated area, but all this is not translated into its development, state level development. But there are some issues and challenges in the development process. There is a very good traditional industry base, but modern industry, it is not faring well. So we can see the industrial development of the state is very low. So, and most important thing is that any developmental parameter or deprivation parameter, the state is faring very low. If you see across states in India, this state is not doing, of course there is a progress, definitely and certainly there is a progress over a period, but the relative performance of this state when compared to other states, it is doing very low, performing low. Okay? So the issue is that when a particular state is falling behind every other state, and within the state a particular community is doing very bad, that means when compared this community in this state and other communities in other states, you can imagine the situation of the community. So that is the kind of deprivation or disadvantageous position that this community is experiencing in the state. Okay? So when we see this, state, how this UP is performing in India, you can see that the per capita income of the Uttar Pradesh is 50% of the all India average. You can see over a period of how it is, there is a widening gap. The gap between all India average and state per capita income, you can see the difference is growing. Okay? And you can see the across states, there is the portion of the state, among those which are having the lowest per capita income in India, the states which are having lowest per capita income. Okay, and the other than this economic parameter, if we go for this any development, other development related indicators, most important we are concerned about is the human development. So on this human development index, we have been since 1990s. You all know that we are concerned about human development of the population. Along with economic development, we should have education, health. These two are very
important kind of parameters for the development we should be concerned about. Every society and every state must be concerned about educational and health development. And so here when we combine these economic, educational and health parameters, and we constructed this human development index across states, you can see the state performance, it is one of the lowest, and it is standing either fourth lowest or third lowest or second lowest in India over the since 1990s. I mean, we have over the year how the different states are faring on the human development index, but you can see the state position 35th or 33rd kind of situation. It is not only that, I mean, even the indicators, development indicators and development performance that is assessed by the Niti Aayog also indicates the state position very low. You can see the recent Niti Aayog report, this multidimensional poverty. You can see that the 37.8% of the population UP, they have one or the other deprivation or one or the other kind of poverty related situation they are experiencing in the state, whereas the national average is 25%. So that means 12% higher than the national average. State is having 12% higher than national average. You can see the state position 35th. Okay. So in the similar situation, now Niti Aayog also, you might have all be knowing that now we are concerned about sustainable development goals. For that, the Niti Aayog has constructed sustainable development index for every state. In that index, I mean state performance, we can see that it is having score of 60, but national average is 66, which is better. National average is better than the state, and the state is standing at 33rd position, one of the, I mean, fourth lowest score. So, and again one more report of Niti Aayog that is recently released is healthy states. That is, they have constructed how the states are doing on health parameters, healthcare facilities and health conditions of the population. There also you can see the 35th position of the state. That means state is having second lowest in health parameters. Okay. So you can see this certain health related parameters. We can see infant mortality rate is second highest among Indian states, second highest among the Indian state. UP is having second highest. So there is child mortality rate, that is infant mortality rate is children dying before the 1 year. Okay, they are reaching to the 1 year, and child mortality is that number of children dying before they completing 5 years of age. So that is child mortality rate we have the highest in UP, and maternal mortality, that is the mothers during the pregnancy or after childbirth due to different complications if they are dying. So that is second highest in India among the states. So antenatal care is important for the infant mortality rate and maternal mortality rate. That prevents these two kind of situations. But that is fourth lowest in UP. And institutional deliveries also actually improves the situation, but that is fifth lowest in AP. So another particular important point is that the governance for the development, taking forward the state in development arena and also reducing any kind of deprivation, the governance of the state is most important. But here what we have seen is that across the states, the governance related issue, one of the issue related to the governance is that the kind of violence actually creates the uncertainty, insecurity for the development. Here we can see the negative relationship between violence and
the state and the economic performance of the state. So the kind of all kinds of crime rate and then murder rate, and if you see that, we have in relationship here. Actually, Uttar Pradesh, if you count among the Indian states, these all crime rate is one of the highest in India. Okay, and when we come to the performance of the socio-religious groups, when we assess the socio-religious groups, and particularly these are the groups we have considered. Of course, I mean, state situation is such that UP, Uttar Pradesh is having 80% of the population Hindu majority, 19% is the Muslim minority by religion. All other religious minorities are just below 1% of the population. By social groups, we have 21% are SCs, less than, I mean, UP is the one of the Indian states which is having very low percentage of STs. Very low, less than 1%. Okay, considerable proportion of the population belongs to other backward classes. We having the highest. And in terms of urbanization is seen as one of the progressive kind of thing, developmental. I mean, that is also one of the development, urbanization. But in UP, we can see that urbanization is one of the lowest. It is 10 percentage points lower than the all India average. Urbanization in UP is, I mean, percentage of the population living in urban areas is just 23.7 according to the census 2011. And whereas national average is almost 34%. So it is almost 10 percentage points below the national average. Okay, one point here is that actually, I mean, all over India, large Muslim population is concentrated in urban areas, but in Uttar Pradesh context, it is not that high. Even though it is higher than the state average, Muslims are 37% of the Muslims are living in urban areas, but whereas in other state context, for example in Telangana, we have 75% of the Muslims are living in urban areas, but in UP it is just 37% only. So that means in rural areas they have to struggle, I mean, and later I will show that even they didn't have agriculture land, and even if they have very, very small extent of land they have, and they are struggling there in the rural areas. The socio-economic and educational development of these social groups varied across the state, and then high inequalities in levels and performance, and there is a widening gap across the social. So Muslims in the state are in the disadvantageous position in many development and deprivation parameters. You can see the, I mean, that what I have just described is this population and then urbanization, and then you can see the Hindu OBCs. We have 41% of the population is Hindu OBCs, and 6% of the population is Muslim OBC, and Muslim OBC others are 13%. Okay, altogether Muslims consist of 19% of the population in the state. So the first and foremost indicator we are concerned when we are assessing the development of the state is educational level. Within the education we can see the literacy levels. What is the literacy? Here illiteracy rate, what we can see here is that the illiteracy rate by socio-religious group, we can observe that it is the Muslims, Muslim others and Muslim OBCs, they are standing next to SC/ST. Such is the high illiteracy rate observed for Muslim community, both others, Muslim others as well as Muslim OBCs. It is higher than the even Hindu OBCs that we can observe here. And second thing is that, yes, I mean, along with illiteracy, the educational levels of the population, if we see, the up to primary, yeah, not much difference, but middle school and secondary and graduation level completion, it is lowest among the Muslim communities. In Muslim OBC and Muslim others, you can see especially if you observe the graduation completion,
it is 7% among the Muslim OBCs and it is just 4% among the Muslim others. Whereas Hindu others, it is 19.83, means almost 20%. There is a huge difference between this Hindu others and Muslim population. And second, is it? It's not coming. Change the file. Slide. No, here I am changing it, but there it is not coming. Sorry. Salman, just come. It is not shared. No, it is not visible there actually. You didn't. It is yeah, I'll just come back. It's not moving. Okay. Yeah, I think you couldn't see the earlier slides. Just I'm showing for your to see. So these are the some of the graphs. You can see the situation of the UP in terms of economic parameter, and this is the situation, Human Development Index situation. And this is the health related parameters, and we can see the crime rate and then per capita income of the state, that relationship. And so this is the situation of the population distribution and OBCs and then illiteracy. Yeah, now I think you are able to see the situation of illiteracy rate across socio-religious groups. And here you can see the educational levels of the population in different socio-religious groups. Okay, so yeah, so how they are doing, I mean, what are their livelihoods, how they are, I mean, their working conditions. When we see the mostly Hindu others, largely they are dependent on agriculture, but Muslim community largely depending upon the non-agriculture activities by sectoral distribution of workforce. And by nature of employment, you can observe that the considerable proportion, it is high among Muslims next to the SC/ST. They are depending upon the casual labor. They are depending upon the daily wage labor. About 20% of the Muslim OBCs and 22% of the Muslim others are depending upon the daily wage labor. That is, I mean, that is highest next to the SC/ST. SC/STs are almost 36%. They are depending upon the casual labor, and next to that, the Muslim communities are highest in depending upon the casual labor. Okay, so here, as I was discussing, I mean, the last point, the UP context, the percentage of the population living in urban areas is actually, in other states like Telangana it is very high, but in UP
it is not that high. Still, only 37% are living in urban areas, but rest of them are living in rural areas. So what is that rural areas, what they do? So mostly it is agriculture land availability that makes their livelihood. But here you can see that the percentage of the Muslim population without land, landless Muslim population, landlessness is highest among the Muslim community. You can observe that. Okay. So among all, even it is higher than the SC/ST. Okay. Landlessness, that is the population without having any land, any kind of agriculture land. So that is highest among the Muslim communities, OBCs as well as others. And also among those households which are having any kind of land, the extent of land, the number of acres or hectares having, it is lowest among the Muslim communities. Okay, you can see the among the Muslim OBCs and Muslim others, it is lowest among all other social groups we can observe. And second most important is that the out of the population, the percentage of the population actually working, so that makes the their livelihood and income earnings. But here what we can see is that the work participation rate or labor participation rates, that is in general it is lower among the Muslim population. Okay, so this lower Muslim work participation rate, what does it indicates? It work participation rate, the percentage of the population working depends upon the availability of the employment opportunities. That means lower participation indicates in a way, so the opportunities for the employment, or they are not able to get as many opportunities as that of other communities. And the other point is that we can see the lower employment opportunities will lead to unemployment rate. We can see the unemployment rate among the Muslims is highest next to the Hindu OBCs. Hindu OBCs having the highest unemployment. Next is the Muslim others and Muslim OBCs, which are having the highest unemployment rate in the working age population as well as in the among the youth. Okay. Then as we have seen earlier, the casual labor in agriculture and non-agriculture, we can see the highest among the Muslim population. Okay. And most important is that how the incomes are. Of course, this data is little, delayed, but recent estimations are not available, but we are using, the situation must be same. So we can see the difference in the household income, difference in per capita income. Okay, it is very, when compared to the Hindus consist of SC/STs. Despite that, the average household income and average per capita income is lowest among the Muslims. Similarly, the expenditure levels, household expenditure also one of the lowest in Muslims when compared to Hindus. Hindus consist of SC/ST as well. We should be aware of that. And we can also see that the poverty rate, the percentage of the population living below a poverty line. Poverty line is that the amount of expenditure that is needed for meeting the basic needs. So the percentage of the population which are not able to, which have income levels not able to meet their basic needs, that percentage of the population is higher among Muslims when compared to other groups. And also the percentage of the population, when we see that the distribute the population by wealth quintiles, that is their income and other assets combined. So the population, percentage of the population in lower wealth quintiles, that means percentage of the population living in poor conditions is high.
Okay, it is done, Yaman. नहीं आप जा सकते सर, आप प्लीज, हमारा कॉन्फ्रेंस होगा, ये फॉर्मेट है। नहीं सर, माफी चाहते सर, प्लीज आप बदतमीजी नहीं कर सकते किसी स्कॉलर के साथ। नहीं रिपोर्ट नहीं, मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं आपसे बेहद माफी चाहता हूँ, और ये बोलना पड़ेगा, स्कॉलर है सर, प्लीज सर। ओके, रिपोर्ट का फंक्शन है सर। नहीं अभी बता दो, अभी बता। okay. Okay, in conclusion, what we are saying is that, in a sense, the state as a whole is performing relatively poor when compared with the rest of India and other states, and within the state, Muslims within the state are falling behind and disadvantageous position. Thank you. Yeah, done. Anna. सलमान ये बंद कर। Good morning. Thanks to all of you to have gathered today. आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की। मैं आप लोगों से सबसे थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा, और अगर आप लोगों को पीछे जो है वो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ओके, थैंक यू। तो स्क्रीन देखें आप, क्योंकि आप शायद मुझे नहीं देख पाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आप में से थोड़ी उजलत में है वो थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हम इस रिपोर्ट की जो सारी नौयत है, जो सारे डिटेल्स हैं, वो आपके सामने पेश करें। आप में से ज़रूर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बहुत पढ़े लिखे हैं और ये किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन ये किताब ऐसी लिखी गई है कि बहुत आसान नहीं है इसको समझना। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा सब्र करके हमें सुने और समझ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें आप MP साहब से सवाल ज़रूर कर सकते हैं। इस रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि मैं अभी भी तवज्जो चाहूँगा, ज़्यादा बोल रहे हैं लोग, मुझे बोलने दें आप थोड़ी देर के लिए। इस रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस इस वजह से है क्योंकि एक जो नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रखा है हमारे मुल्क में और ख़ुसूसन इस स्टेट में। मैं वाजे कर दूं कि ये मेरा स्टेट है, मैं फतेहपुर ज़िले का हूँ, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, और रहता तो हूँ दिल्ली और हैदराबाद में, लेकिन हूँ यहीं का। एक जो बड़ी अंडरस्टेटेड लेकिन बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे गहरी तौर पे फैल रखी है, खुसूसन, और मैं ये बिल्कुल हिचकिचाऊँगा नहीं कहने में, खुसूसन हमारी मीडिया में, वो ये कि एक अपीजमेंट का नैरेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और ये कि मुसलमान माइनॉरिटी खुसूसन यूपी में बहुत अपीज्ड रही और पिछली सरकारों ने मुसलमानों को गैर ज़रूरी इम्पोर्टेंस दी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो डेटा देखें जो गवर्नमेंट खुद बता रही है। मैंने पहले भी कहा आपसे कि इस किताब में और इस रिपोर्ट में कोई ऐसा डेटा नहीं है जो कहीं और से आया है, वो यूपी सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, और तकरीबन डेटा बिल्कुल अपडेटेड है 2020 और 21 तक का। तो अगर आपको अब आप जाके किताब ज़रूर देख सकते हैं, और हर डेटा इसीलिए हमने पेश कर रखा है आपके पास कि आप उसको अपनी तरह से एनालाइज करें। हम अपनी एनालिसिस पेश कर रहे हैं जो जिसके हम स्टूडेंट हैं और जिसमें से ये प्रोफेसर वेंकट नारायण वगैरह माहिर हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको जल्दी से ले चलूं कि हम क्या क्या कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, इसके 36 चैप्टर हैं। हमने इसको तकरीबन 8-9 पार्ट्स में बांट रखा है ताकि आप मुसलमानों की जो सिचुएशन है यूपी में उसको हर पहलू से देख सकें। आप लोग नॉर्मली एजुकेशन और हेल्थ से देखते हैं, हम उसको और ज़्यादा पहलुओं पे बांट के हम आपको ख़ास तौर पे बता रहे हैं कि मुसलमानों की सिचुएशन खुसूसन यूपी में किस तरह की है। सबसे पहली बात एक जो अभी आपको वेंकट साहब ने बताई, लेकिन मैं आपको
दूसरी तरह से समझा दूं, वो ये कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, ये आप सब जानते हैं, इससे मुझे दोबारा नहीं कहना है। लेकिन गरीबी होती क्यों है? गरीबी की वजूहात क्या होती हैं? कोई भी शख्स या कोई भी गिरोह या कोई भी ग्रुप गरीब क्यों होता है? मैं प्रोफेसर हूं तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा लेक्चर भी कर दूं। हम ये पढ़ाते हैं कि गरीबी की असली वजूहात पढ़ाई लिखाई नहीं होती। हम अक्सर ये समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई और पॉवर्टी में बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, लेकिन ये बहुत कम होता है। देयर इज अ कोइंसिडेंस बट देयर इज नो कोरिलेशन। जो असली वजह होती है पॉवर्टी की, दुनिया भर में, इंडिया में नहीं, सिर्फ यूपी में नहीं, दुनिया भर में जो असली वजह होती है, वो सबसे बड़ी वजह होती है एसेट ओनरशिप। यानी एसेट ओनरशिप का मतलब मिल्कियत, कि किसके पास कितनी जमीन या घर उनके अपने होते हैं। गरीबी की वजह यह होती है, जहां ज्यादा गरीबी होती वहां आप देखेंगे कि ज्यादा लोगों के पास ना जमीन होती ना घर होता है, ज्यादातर वो किराए पे होते हैं। तो एसेट ओनरशिप सबसे बड़ी वजह होती है। दूसरी जो बड़ी वजह होती है गरीबी की, वो होती है माइग्रेशन, हिजरत। आपको कितना मौका मिलता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, गांव से आप शहर आ जाएं। दुनिया भर में गरीबी किस वजह से कम हुई? चाइना में कम हुई, देखा आपने, चाइना की बड़ी खास हिस्ट्री है। चाइना ने सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के ऊपर किया पिछले 20-25 साल में। 600 मिलियन लोग, 60 करोड़ लोगों को। चाइना में हमसे ज्यादा गरीब होते थे 30 साल पहले, अब बराए नाम है। और उसकी असली वजह ये थी, दो वजह थी। एक कि चाइना ने सब चाइनीज को, तकरीबन सब चाइनीज को, कोई छोटी सी जमीन या एक छोटा सा घर दिया। इसीलिए जब हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था 7 साल पहले कि मैं 2022 तक सब हिंदुस्तानियों को घर दे दूंगा, तब हम में से बहुत लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि हम ये जानते थे कि ये सबसे बड़ी वजह है गरीबी की। इस साल होना था वो, लेकिन कई वजूहात से हुआ नहीं। वो सबसे बड़ी वजह थी, वो एक गेम चेंजर था। तो चाइना ने वो बहुत किया। दूसरी वजह, चाइना में बहुत सारे लोग, और चाइना ही नहीं, ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, जो भी गरीब मुल्क थे 50 साल पहले और अब गरीब नहीं रहे, उनमें एक और वजह ये थी कि वहां पे बहुत से लोगों ने गांव छोड़ के शहर मूव किया। ये दो बड़ी चीजें हैं। और इन दोनों चीजों में, और आप में से हजरात जो किताब देख रहे हैं वो जरूर इन दो डेटा को जरूर देखें, कि अगर आप देखें तो यूपी की बदहाली की सबसे बड़ी वजह यही दो चीजें। लैंड एसेट ओनरशिप बहुत कम है, जनरली बहुत कम है, और मुसलमानों की आधी है। नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन की आधी है लैंड ओनरशिप मुसलमानों की। मैं आई होप कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, कि मुसलमान जो हैं वो आम लोगों से 50% कम ऐसे हैं जिनके पास कोई छोटी सी 2 बीघा जमीन ही सही हो, और जो लैंड की वैल्यू है वो भी आधी है। अगर एक मुसलमान है और नॉन मुसलमान है तो 50% ऑफ द टाइम मुसलमान के पास कोई ओनरशिप नहीं है, और अगर है तो नॉन मुस्लिम अपने नेबर की आधी लैंड है। किसी के पास अगर 2 बीघा जमीन है औसतन, तो मुसलमानों के पास 1 बीघा है। 2 एकड़ और 3 एकड़ यूपी में वो पाई जाती है। तो सबसे बड़ी वजह है। दूसरी वजह ये है, जो वेंकट साहब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया, वो ये कि अगर आप देखें हिंदुस्तान में हमारी 33% आबादी शहरों में रहती है। 2011 के डेटा के मुताबिक 1/3 आबादी शहरों में रहती है, नेशनल एवरेज। लेकिन यूपी में 1/5 आबादी शहरों में रहती है। यूपी बहुत ज्यादा रूरल एरिया है। मुसलमान उमूमन इंडिया में शहरों में ज्यादा रहते हैं, यूपी में सबसे कम शहरों में रहते हैं। तो ये जो अर्बनाइजेशन है, ये जो हिजरत के मौके हैं गांव से शहर में, वो भी यूपी में सबसे कम है। सबके लिए सेक्युलर प्रॉब्लम है ये, लेकिन मुसलमानों के लिए ज्यादा है। और ये खास बात इस वजह से है क्योंकि गांव से शहर कोई
क्यों जाता नहीं? गांव में बड़ी भूखमरी है, आप तो वाकिफ हैं, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहां पे गांव में बहुत भूखमरी है, स्कूल नहीं, बारिश होती सब बह जाता है, हॉस्पिटल नहीं, फिर लोग क्यों गांव में रहते हैं? एक वजह यह होती है कि वो इस वजह से रहते हैं क्योंकि उनकी जमीन है वहां। फिर ये मुसलमान गांव में क्यों रहते हैं? इनके पास तो जमीन भी नहीं है, ये अर्बन एरियाज में क्यों नहीं आते? ये अर्बनाइजेशन की सबसे स्लो रफ्तार हिंदुस्तान में, यूपी में क्यों है? ये दूसरी वजह है। तो ये दो आप अपने जहन में रखें एज हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये कि अगर आप एजुकेशन देखें तो बड़ी अजीब एक सिनेरियो निकल के आती है। पढ़ाई लिखाई में, प्राइमरी एजुकेशन में कोई फर्क नहीं है। प्राइमरी एजुकेशन में मुस्लिम नॉन मुस्लिम बच्चे उतने ही स्कूल को जाते हैं, तकरीबन 90%। लेकिन फौरन ही फिर वो गैप बढ़ने लगता है। अगर आप देखें, वो होता ये है कि अगर आप 25% ऐसे लोग हैं यूपी के जो प्राइमरी स्कूल पढ़ चुके हैं, 28% मुसलमान हैं जो प्राइमरी स्कूल पढ़ चुके हैं। तो अगर आप प्राइमरी स्कूल देखें तो मुसलमान थोड़े से बेहतर है नॉन मुस्लिम से। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जहां आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे आते हैं, तो वहां पे आप देखिए कि कुल मुसलमानों में यूनिवर्सिटी की डिग्री, आप एक गेस करें अपने दिमाग में कि कितनी फीसद मुसलमानों के पास कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी। मैंने कहा आपसे कि तकरीबन 30% मुसलमान प्राइमरी स्कूल पढ़ते हैं, लेकिन जहां हम यूनिवर्सिटी तक आते हैं तो मुसलमानों की तादाद एज अ परसेंटेज ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, 100 मुसलमानों में से 4 के पास डिग्री होती है। 4। नेशनल एवरेज 18%, चाइना का एवरेज 35% है, अमेरिका का 55 है। हमारे यहां मुसलमान पॉपुलेशन यूपी की 4% होती है जो किसी किस्म के कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाती है। यह बड़ी अजीब बात इसलिए भी है कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज यूपी में ही है। इंडिया में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज, तकरीबन 65 यूनिवर्सिटीज यूपी में। अगर आप आगे बढ़ें और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, तकरीबन आधे मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अच्छी बात है कि खुद अपनी नौकरी तलाश करते हैं, लेकिन इस बात का भी डायरेक्शन अंदाजा देती है कि इनके लिए जॉब के मौके रेगुलर जॉब के नहीं है। हम सब चाहते हैं, उमूमन लोग चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह नौकरी मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि गरीबी अगर आप देखें तो यूपी बड़ा अजीब स्टेट है। ये एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि 70 साल पहले 1950 में यूपी की जो पर कैपिटा इनकम थी, पर कैपिटा इनकम का मतलब औसत तनख्वाह जो एक एवरेज आदमी को मिलती है। अगर आप 70 साल पहले यूपी की औसत तनख्वाह देखें तो वो एग्जैक्टली इंडिया की औसत तनख्वाह थी। यूपी वॉज द नेशनल एवरेज। उसके बाद से, खुसूसन 1990 के बाद से ये गिरने लगी और अब यूपी की एवरेज पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज की 40% है, आधी भी नहीं, आधी से भी कम। अगर इंडिया की नेशनल एवरेज इनकम 1,40,000 है तो यूपी की 60,000। यूपी से नीचे बस 4-5 स्टेट है। तो ये, और उसमें अगर 960 रुपए एवरेज यूपी की है तो मुसलमानों की 700 रुपए, तो उसमें भी अबाउट 25% कम है। तो गरीबी का ये एक बड़ा अलमिया है जो हम देख रहे हैं। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है। बंटवारे के बाद भी 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और 1 लाख गांव है। यानी हिंदुस्तान के 6 लाख गांवों में से 1 लाख गांव यूपी में है। तो गांवों की तादाद बहुत बड़ी है। और वहां अगर आप देखें तो वही है कि एक जो नुमाया बात नजर आती है यूपी में, इलिटरेसी तो बहुत ज्यादा है, यानी अमंग द हाईएस्ट। लेकिन यूपी की खास बात यह है और एक बड़ी दर्दनाक बात यह है कि सबसे कम फीमेल लिटरेसी यूपी में देखी जाती है। यूपी के
40% औरतें बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, जीरो लिटरेसी। 40%, नेशनल एवरेज 25% है। और अगर आप देखें तो आखिरी बात जो इस सिलसिले में मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि यूपी सारे आंकड़ों में, जैसे वेंकट साहब ने अभी बताया आपको, सारे आंकड़ों में हमारे पास 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन तकरीबन हर वैल्यू पे यूपी का रैंक या तो 35वां है या 36वां है। कभी कभी बिहार नीचे आ जाता है, अदरवाइज इन मोस्ट सोशल इंडिकेटर्स यूपी इज एट द बॉटम। तो अब मैं वो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट बताऊं। जो देखिए इंडिया में पिछले 25-30 साल से हमारी इनकम बहुत बढ़ गई है। 400 रुपए हुआ करती थी, वो $400 हुआ करती थी, अब $200 हो गई साल भर की। तो सारे लोगों की इनकम बढ़ी है पिछले 25-26 साल में। लेकिन जो सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ रही है वो यूपी की रही है, 3% रही है। 3% पर एनम यूपी की ग्रोथ रही है। और मैं क्यों ये बात बताना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप ग्रोथ रेट अगर कंपेयर करें इनकम का, तो यूपी की ग्रोथ रेट 3.5% रही है, बिहार की 5% रही है, मध्य प्रदेश की 4.5%, उड़ीसा की भी 6%। सो ग्रोथ रेट के मामले में यूपी की ग्रोथ रेट बड़े गरीब स्टेट्स लाइक उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश की भी आधी रही है, खुसूसन पिछले 10-12 साल में। ये जो नए आंकड़े आ रहे हैं, जो नया डेटा आ रहा है, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का नीति आयोग का डेटा है। पिछले 2 सालों से अभी भी हम सब कोविड से जूझ रहे हैं, सबको अपने हेल्थ की बड़ी फिक्र है। अगर आप हेल्थ का डेटा देखें, ये बिल्कुल नया जो डेटा है वो ये कि अगर आप दुनिया भर में एक उसूल है कि आपके पास इतने डॉक्टर होने चाहिए कि हर डॉक्टर 1000 लोगों की देखभाल करे। 1000 WHO का रिकमेंडेशन ये कि हर 1000 की आबादी के लिए एक डॉक्टर हो। इंडिया का एवरेज है 11,000 के लिए एक डॉक्टर, हम बिल्कुल आखिरी में है दुनिया भर में। लेकिन यूपी का एवरेज 19,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर। और इसमें सिर्फ बिहार यूपी से नीचे है। आपके पास 1 लाख लोगों के लिए 13 हॉस्पिटल बेड है। इसीलिए पिछले साल जब जो लोग बीमार हुए या परेशान हुए, उनको पार्किंग लॉट में रहना पड़ा। सिर्फ वहां पे आप देखिए, सिर्फ बिहार का मसला है। इलेक्ट्रिसिटी, हम बहुत बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, और एक जो बड़ी बात हुई बिजली की वो ये कि पिछले दिनों में बिजली तकरीबन हर गांव में पहुंच गई। लेकिन खास बात यह है कि यूपी में जहां पे 99% गांवों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यूपी में हम समझ रहे थे कि 100 साल लगेंगे बिजली को पहुंचने में, लेकिन बिजली 99% गांव में पहुंच गई। मगर प्रॉब्लम क्या है, गांव तो 99% है, लेकिन घर 60% है। अभी भी 40% घर हैं जहां पे बिजली नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम। गांव में तो है बिजली, लेकिन घर में नहीं है। और ये इसमें यूपी सिर्फ झारखंड, उड़ीसा और एमपी से बेहतर है। एमपी में अबाउट 90%। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है इस वजह से यूपी में सबसे कम। यूपी का कंजम्पशन अगर आप देखें तो उत्तराखंड और यूपी में, यूपी का घर उत्तराखंड से का 1/3 बिजली कंज्यूम करता है। तो ये डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है जो आप सब लोगों को समझना चाहिए। कितने लोग काम करते हैं, इसको इकोनॉमिक्स में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब कि अगर 100 लोग हैं जो 15 साल से और 60 साल की उम्र तक के हैं, उनमें से कितने लोग काम करते हैं, किसी किस्म का काम, घर में, खेत में, अपने ठेले पे, गवर्नमेंट में, कहीं भी। तो अगर आप देखें तो सबसे जो कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है यूपी का, वो मुसलमानों में सबसे कम, दोनों रूरल और अर्बन एरियाज में। सबसे ज्यादा मुसलमान कहां काम करते हैं? नॉन मुसलमान सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में करते हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में।
और 75% मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर आप देखें कि स्टेट गवर्नमेंट में कितनी नौकरियां हैं मुसलमानों की, मुसलमान आबादी यूपी की 19-20% है, 19%। स्टेट गवर्नमेंट में कितने मुसलमान हैं जो जिनकी नौकरियां हैं? तो स्टेट एवरेज जो है वो है 5%। 20% पॉपुलेशन है, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में 5%। और ये 5% में सबसे ज्यादा नौकरियां वो क्लास डी वाली नौकरियां हैं, क्लास ए में बिल्कुल बराए नाम है। सबसे ज्यादा जिनके पास जमीन नहीं है वो मुसलमान है। एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा नया आया है, खुसूस ये आप सब लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होगा इस बात को सुनने में, इस वजह से भी क्योंकि पिछले 3-4 साल से एक जो बड़ी बहस रही है यूपी में वो गाय को लेके रही है, नहीं? बहुत उस पर आप लोगों ने लिखा, गड़बड़ हुई, पता नहीं क्या क्या, मैं उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं। लेकिन आप नंबर देखें, किसके पास जानवर ज्यादा है। ये बिल्कुल नया सा सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वे। तो अगर आप देखें तो जो दूध देने वाला जानवर है वो पर मुस्लिम हाउस होल्ड नॉन मुस्लिम हाउस होल्ड का आधा होता है। अगर एक जानवर है गैर मुसलमान घर में तो मुसलमान घर में आधा है, यानी अगर मुसलमान नॉन मुस्लिम घर में 2 जानवर हैं तो मुसलमान घर में 1 है। काउ पॉपुलेशन सबसे कम, काउ बफेलो पॉपुलेशन सबसे कम मुसलमान। जितने आप देखें यंग कैटल, ड्राउट एनिमल्स, मिल्च कैटल, ये सारे कैटल आप देखेंगे कि सबसे कम मुसलमानों के पास है। एक जानवर सबसे ज्यादा, दो सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा बकरियां मुसलमानों के पास है और चिकन। लेकिन बड़ा मिल्च एनिमल इज नॉट ओन्ड बाई मुस्लिम्स इन द स्टेट। किसानों में देखिए आप कि अगर औसतन घर के पास 17-18 हजार की वैल्यू की एग्रीकल्चर मशीनरी है तो मुसलमानों के पास 4,000 रुपए की है। एक और जो आंकड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा वो ये कि अगर आप यूपी को 5 हिस्सों में डिवाइड करें, बहुत अमीर लोग, उससे कम, एवरेज लोग, गरीब लोग और बहुत गरीब लोग, ये 5 किस्म से हम डिवाइड करते हैं कोई भी पॉपुलेशन को, कि यहां पे जितने बैठे हैं वो शायद पहले ग्रुप में है, सबसे अमीर लोग। लेकिन अगर आप 5 ग्रुप्स में बांटें तो आप देखेंगे कि सबसे नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन में जो सबसे अमीर कैटेगरी में आता है वो 22% होता है, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। मुसलमान पॉपुलेशन उसका आधा होता है। आधे लोग मुसलमान ऐसे हैं जो सबसे रिच कैटेगरी में, और ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मुसलमान वो लोएस्ट कैटेगरी में, वहां मुसलमान सबसे ज्यादा है और अपर इनकम एंड मिडिल इनकम में सबसे कम है। यूजुअली नॉन मुस्लिम के कंपैरिजन के आधे। ये हो गई। अब एक जो इंटरेस्टिंग आंकड़ा, मेरे एक बड़े अच्छे कलीग हैं जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने ये पेपर लिखा है हमारे रिपोर्ट के लिए। वो देख रहे हैं कि मुसलमान और नॉन मुसलमान बच्चों की सेहत कैसी होती है, क्या इसमें कोई डिफरेंस है। और ये बड़ी दिलचस्प उन्होंने फाइंडिंग की है। अगर आप इन्फेंट मोर्टालिटी देखें, इन्फेंट मोर्टालिटी का मतलब बच्चे जो पैदा होते ही मर जाते हैं, या पहले महीने में या पहले साल में, उसको हम इन्फेंट मोर्टालिटी कहते हैं, लेस देन 1 मंथ और लेस देन 1 ईयर। अगर आप लेस देन 1 ईयर इन्फेंट मोर्टालिटी को देखें कि बच्चा पैदा होने के 1 साल में कितने बच्चे मर जाते हैं, यूपी का फिगर बहुत ज्यादा है, केरला से 10 गुना ज्यादा है। इन यूपी व्हाट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग इज कि चाइल्ड सर्वाइवल अमंग मुस्लिम्स इन द फर्स्ट ईयर इज ट्वाइस दैट ऑफ नॉन मुस्लिम्स। मैं पता नहीं आपको समझा पाया नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं कि इन्फेंट बच्चे मुसलमानों के दुगने सर्वाइव होते हैं कंपेयर टू नॉन मुस्लिम।
ये क्यों होता है पता नहीं, लेकिन ये होता है। उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं। उसके बाद जैसे बड़े होने लगते हैं हेल्थ मुसलमानों की आधी हो जाती है। लेकिन एट बर्थ बोथ मुस्लिम बॉयज एंड गर्ल्स चाइल्ड सर्वाइवल इज ट्वाइस दैट ऑफ नॉन मुस्लिम चिल्ड्रन। और ये आगे बढ़ के क्यों नीचे हो जाते हैं उसकी कई वजूहत हैं। एक वजह ये है कि जहां मुसलमान आबादियां ज्यादा हैं वहां डॉक्टर कम है। एक बात जो बैंक्स के बारे में एक बड़ा चैप्टर है वो आप जरूर पढ़ें कि कितने मुसलमान हैं जो जिनके पास बैंक है, और इसमें बहुत अजीब किस्म का डेटा आता है जो आपको मैं क्विकली समझा दूं। अगर आप बैंक देखें और वो देखें कि कितने परसेंटेज लोगों के पास बैंक अकाउंट है, तो हमने उन डिस्ट्रिक्ट्स को लिया जहां पे मुसलमान आबादी 20% से ज्यादा है। वहां अगर आप देखें तो गाजियाबाद, लखनऊ और मेरठ ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पे मुसलमानों की बैंकिंग जो है वो तकरीबन 30-35% है, इन्हें बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप जाएं संभल, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, ये ऐसे ज़िले हैं जिनमें मुसलमानों की बैंकिंग एबिलिटी, बैंक अकाउंट इंडिया में सबसे कम है, और यहाँ पे मुसलमान आबादी बहुत ज़्यादा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हमने यही लिस्ट को ये देखा कि बैंक यहाँ पे कितने हैं, तो ये साफ जाहिर होता है कि ये वो ज़िले हैं जहाँ पे बैंक है ही नहीं, जहाँ पे बिल्कुल कम बैंक है। और वो नंबर हमने यहाँ पे दे रखे हैं, वो आप ज़रूर देखें कि संभल, शामली, श्रावस्ती, बलरामपुर, इन ज़िलों में बैंक भी बहुत कम है और इन ज़िलों के मुसलमानों के पास बैंक अकाउंट भी बिल्कुल ही कम है। संभल और बलरामपुर पर्टिकुलरली आर वेरी बैड, और सबसे अच्छा ज़िला इस मामले में मेरठ। ओके, फिर एक बड़ा अच्छा चैप्टर है मदरसा एजुकेशन में, वो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस ये कि उस चैप्टर में ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड की एक प्रोफेसर है, उन्होंने लिखा है कि ये बड़ी अजीब बात है कि जहाँ जिस स्टेट से दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छे मदरसे आए हैं, उनमें वहाँ पे अब मदरसों की हालत बिल्कुल ही यानी ऐसी हो रखी है कि हर आदमी उनसे नाखुश और नापसंद करता है। फिर मैंने आपको शुरू में कहा कि वो हिजरत की बात, और यहां पे बड़ा नुमाया फर्क नजर आता है। यूपी से बाहर कौन जाता है? यूपी छोड़ के लोग कहां क्यों जाते हैं और कौन जाता है? और यहां पे बड़ा इतना क्लियर डिफरेंस है कि यूपी का इमिग्रेंट 51% ऑफ द टाइम इज मुसलमान। सबसे ज्यादा जो हिजरत करते हैं आउटसाइड यूपी इन इंडिया एंड आउटसाइड यूपी आउटसाइड इंडिया आर मुस्लिम्स। लेकिन मैंने आपको शुरू में कहा कि हिजरत बड़ी अच्छी चीज है, माइग्रेशन बड़ी अच्छी चीज है, उससे इनकम लेवल इंप्रूव होते हैं, उससे स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है, इकोनॉमी इंप्रूव होती है। यूपी की क्यों नहीं होती? फिर अगर इतने लोग जाते हैं तो यूपी की इकोनॉमी क्यों नहीं इंप्रूव होती? वो इस वजह से कि यूपी का जो माइग्रेशन है वो दूसरे माइग्रेशन से बहुत मुख्तलिफ है। यूपी से जो माइग्रेट करता है वो टिपिकली अनट्रेन्ड, अनस्किल्ड, इलिटरेट वर्कर होता है। उस वजह से इस पेपर में हमने ये भी कैलकुलेट किया है कि ये जो बाहर जाते हैं वो कितने पैसे वापस भेजते हैं। तो आप देखिए कि ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो 1.5 लाख से कम भेजते हैं साल भर में। तो ये बहुत गरीब लोग हैं, और ये इस वजह से नहीं जा रहे हैं कि उनको कोई बहुत ज़बरदस्त नौकरी और बड़ा अच्छा घर बम्बई में और केरला में और दुबई में। ये इस वजह से जा रहे हैं कि ये बड़े लाचार हैं, यहाँ इनके पास कोई और चारा नहीं। भेजते तो हैं पैसे, कुल मिला के बहुत पैसे आते हैं, लेकिन ये जाते इस वजह से हैं क्योंकि दे आर फोर्स्ड आउट ऑफ द स्टेट, एंड दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। और ये बिल्कुल बार बार ये डेटा दिखाया गया है कि यूपी का अगर 100 लोग अगर बाहर जाते हैं तो उसमें से 51 लोग मुसलमान होते हैं, 3 गुना ज्यादा।
20% आबादी है, बट 51% ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम यूपी आर मुस्लिम्स। एक चैप्टर है जो एक और बड़े प्रोफेसर हैं उन्होंने लिखा है इस बात पे कि अगर यूपी में बहुत ज्यादा लोग मुसलमान लोग अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर एंटरप्रेन्योर हैं, तो इनका क्या हाल है। और ये डेटा, ये टेबल भी और ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें बस एक बात मैं बताना चाह रहा हूं कि हर स्टेट में एक नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होता है। देखिए, जब कोई एंटरप्रेन्योर होता है ना, जो कोई अपनी पूंजी से अपनी कोई फैक्ट्री या अपनी कोई दुकान लगाता है, तो उसको सबसे बड़ी जरूरत किस चीज की होती है? अगर वो बड़ी इंडस्ट्री लगाता है तो उसको स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है। जब छोटा लगाता है तो उसको क्या जरूरत होती है, क्या चाहिए? अगर मैं एक अपना धंधा शुरू करना चाह रहा हूं, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, तो मुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मुझे कैपिटल की जरूरत होती है, इजंट इट? पैसे चाहिए, मशीन खरीदूं, लैंड खरीदूं। इसके लिए 15-16 साल पहले गवर्नमेंट ने हर स्टेट को एक माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया था। अब आप देखिए कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की क्या कारकर्दगी रही है। यूपी का फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पिछले 2 साल 2020 और 2021, मैं बहुत पुराना डेटा नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल नया डेटा, अगर आप देखें तो 2020 में यूपी का नेशनल माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कितने पैसे अलॉट हुए? यूपी का माइनॉरिटी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंडेड बाय द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में 10 करोड़ रुपए दिए। 2011 में बहुत उसको बढ़ा के 21 करोड़ रुपए, पूरे स्टेट के 200 मिलियन लोगों में 40 मिलियन आबादी के लिए 10 करोड़ और 21 करोड़। अब आप कंपेयर करिए, बंगाल बहुत गरीब स्टेट है। बंगाल ने, जब यूपी ने दिए 21 करोड़ तो बंगाल ने दिए 300 करोड़, और उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि इतने कम क्यों दिए, 300 करोड़ क्या होते। और केरल ने, जो इतना सा स्टेट है, उसने दिए 250 करोड़। तो ये आपको साफ जाहिर होता है कि आखिर वो लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जिनको कैपिटल की जरूरत है, उनके पास सबसे कम एक्सेस टू कैपिटल है। बैंक में भी नहीं है, वो बैंक से भी लोन नहीं ले सकते, जो अभी मैंने बताया, और गवर्नमेंट से भी नहीं ले सकते। तो ज्यादातर जो मुसलमान व्यापारी है यूपी का, वो लोन लेता है दोस्तों से या रिश्तेदारों से, और या फिर बहुत महंगा लोन लेता है। तेलंगाना में हमने देखा कि मुसलमान और नॉन मुसलमान इंटरेस्ट रेट में 3 गुना फर्क है। अगर आप नॉन मुसलमान हो तो आपको लोन मिलता है 20% इंटरेस्ट पे, अगर आप मुसलमान हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 60%। अब आप सोचिए कि वायबिलिटी कैसे होगी। एक चैप्टर जो एक बड़े प्रोफेसर हैं लंदन के, मैं अभी आपके सदर साहब से बता रहा था कि उन्होंने एक चैप्टर लिखा है कि किस किस्म से यूपी में ये जो डिफरेंट अलग अलग तबके हैं, उनमें किस तरह का चेंज आया है। द शिया, सुन्नी, बरेलवी, वहाबी, ये जो डिफरेंसेस हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। वो चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस किस्म से चेंज आया है, कौन से वो कैसे वो डायरेक्शन लिया। ये क्रिस्टोफर जैफरलो हैं। क्रिस्टोफर जैफरलो दुनिया के माने हुए सोशल साइंटिस्ट हैं, लंदन और पेरिस में पढ़ाते हैं। उनका चैप्टर है, आप ये जरूर पढ़ें। जो आखिरी चैप्टर है वो हमने पिछले 3 साल में लखनऊ और बनारस में हमने स्टडी की थी, और ये बड़ी इस स्टडी की बुनियाद बड़ी इंटरेस्टिंग थी। हमने ये पूछा लोगों से कि आप वोट किसको देते हैं और क्यों देते हैं। क्या आप वोट इस वजह से देते हैं कि जिसको आपने इलेक्ट किया उसने आपकी नौकरियां बढ़ाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, पर कैपिटा इनकम बढ़ी, या कोई और वजह है। और उस स्टडी का रिजल्ट बड़ा अजीब और बड़ा चौंका देने वाला है।
तो वो चैप्टर आप आखिरी वाला उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं वो एक तो बड़े वैलिडेटेड हैं जो हम देख रहे हैं आजकल जो रियलिटी को, लेकिन वो बड़े मायूस कुन है। वो आप चैप्टर ज़रूर देखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुलासा ये कि अगर आप यूपी के मुसलमानों को देखें तो इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की यूपी में, और इस बड़ी आबादी का जो हाल है अब, उससे हरगिज़ कोई ये नहीं कह सकता कि इस तबके को किसी किस्म का किसी वक्त भी अपीजमेंट किया गया हो। ये डेटा तो नहीं कहता। ये मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि जेल में कितने हैं और अंडर ट्रायल कितने हैं, वो एक बहुत बड़ा डेटा है और वो और भी मायूस कुन डेटा है। हाँ, ये सारा डेटा जो है, जब हम इस रिपोर्ट की जो इशू 2 आएगी अगले महीने, उसमें फिर ये सारा डेटा भी होगा। लेकिन मैं आपको, ये आप में से सब लोग जानते हैं, आप लोगों ने बहुत बार लिखा भी है ये, तो मैं इसीलिए अभी उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से आखिरी में एक 2 सवाल जो हमको समझ में आए इस स्टडी में, वो 2 सवाल के हमें जवाब तो नहीं मिले, लेकिन वो 2 सवाल हैं बड़े अहम। पहला सवाल ये है, वो जो अभी मैंने कहा कि अगर हम ये सारा डेटा देखते हैं, और ये सारा मैं बार बार आपसे 6 बार शायद कह चुका हूं कि ये सारा डेटा सरकारी डेटा है और बड़ा पुख्ता किस्म का डेटा है, बड़े फूक के इसको इशू किया गया है। आप लोगों ने वो कंट्रोवर्सी देखी होगी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा था वो तो गवर्नमेंट ने रिलीज ही नहीं किया, उसको बंद कर दिया। उसकी वजह से हमारे जो एक और साथी हैं उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था, चेयरमैन थे वो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के। तो अगर आप ये डेटा देखें तो इस डेटा के बावजूद फिर ये जो डोमिनेंट नैरेटिव है अपीजमेंट वाली, वो कहां से आती है, वो किस वजह से आती है? अगर इतने ज्यादा लोग उस पर यकीन रखते हो तो कोई तो वजह होगी जहां से आ रही हो, वो डेटा से तो समझ में नहीं आती। तो वो एक सवाल है जिसका मैंने बहुत कोशिश की, हम सब ने, लेकिन इसका जवाब हम नहीं दे पा रहे। जो दूसरा सवाल है, और ये और भी दिलचस्प सवाल है, और इसका आंसर आप सब लोगों को अनखरीब देना है। ये हमें नहीं देना है, थैंकफुली आप लोगों को देना है। आप समझ जाएंगे मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे ये सवाल। वो सवाल ये है कि जब हमने ये स्टडी की 17-18 स्टेट में, तो एक बात जो कई लोगों ने हमसे कही वो ये कि मुसलमानों का लीडर, मुसलमानों का नेता कौन होना चाहिए। ये मैं आप सबसे सवाल करूं, मुसलमानों की नुमाइंदगी किसको करनी चाहिए? क्या मुसलमानों का नुमाइंदा ऐसा लीडर हो जो सेक्युलर लीडर हो? पिछले 7-8 डेकेड से हमारे लीडर, आप लोगों के लीडर यूपी में मुलायम सिंह रहे, मायावती रही हैं, सो मेनी पीपल, बहुत दिनों तक कांग्रेस पार्टी रही, फिर आपने बिल्कुल ही हटा दिया। जब हमने ये सवाल किया कि मुसलमानों का लीडर, क्या मुसलमानों का लीडर मुसलमान होना चाहिए या सेक्युलर आदमी हो, जो कोई फर्क नहीं करता और वॉटेवर, इसका जवाब हमको बड़ा दिलचस्प मिला। हर स्टेट में हमने 15 स्टेट में यह सवाल पूछा कई हजार लोगों से। इंटरेस्टिंग आंसर इसका आप सुन लीजिए कि ज्यादातर मुसलमानों ने, इनफैक्ट बड़ी मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स ने यह कहा कि मुसलमानों का लीडर कोई जरूरी नहीं है कि मुसलमान का लीडर कोई भी हो सकता, एज लॉन्ग एज वो जेन्युइन लीडर हो। लेकिन जब हमने ये सवाल गैर मुसलमानों से पूछा तो उन सब ने ये कहा कि मुसलमान का लीडर मुसलमान होना चाहिए। बड़ा अजीब सवाल है और बड़ा अजीब जवाब है। मैं आप लोगों से इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अगले महीने ये सवाल का जवाब तय करेंगे अपने लिए। थैंक यू।
बेहद शुक्रिया जनाब आमिरुल्लाह खान साहब, वेंकट साहब, मैडम। और आपने सुन लिया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का क्या हाल है। मैं उन तमाम डेटा को दोहराना नहीं चाहता हूं, मगर एक दो बातें शायद आमिर भाई थोड़ा बोलने से जल्दबाजी में शायद मिस हो गई। उसमें यह कि मुस्लिम ओबीसी समाज का जो डेटा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, उनको भी उसमें शेयर नहीं मिल रहा है। जो मुस्लिम ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, जो आप देखेंगे रिपोर्ट के पेज नंबर 15 पर है, उसको आप देख लीजिए। और पेज नंबर 16 पर एक और बात जिसका जिक्र मैं करना जरूरी समझता हूं, वो ये है कि 1834 जो यूनिवर्सिटी टीचर्स काम कर रहे हैं स्टेट यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में है, उसमें से सिर्फ 57 मुसलमान हैं, यानी 3.11। और जो 727 असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन है, जिसमें से 149 पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, उसमें से सिर्फ 4.6% मुसलमान हैं। तो ये दो तीन चीजें थी, आप जरूर, और हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को शौकत साहब और आसिम अख्तर साहब ने आपके व्हाट्सएप नंबर पर इस रिपोर्ट को भिजा दिया है। और जो हजरात को ये रिपोर्ट नहीं मिली, जो मोअज़्ज़िज़ हजरात आए हुए हैं, अगर आप अपना नंबर हमारे जिम्मेदारों को दे दें तो इंशाल्लाह वो रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर हम लोग रवाना कर देंगे। और फिर इसको AIMIM के वेबसाइट पर भी हम इस रिपोर्ट को डालेंगे। एक इंटरिम रिपोर्ट है और चैप्टर्स की रिपोर्ट इंशाल्लाह 30 जनवरी को आएगी। आखिर में मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि ये डेटा साफ तौर पर बताता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपीजमेंट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, जो हिंदी का वर्ड है, अगर मुझे माफ कर दिया मैं गलत कर रहा हूं, तुष्टीकरण जो कहते हैं वो नहीं हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, डेलिबरेट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, और इसके जिम्मेदार सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये डेटा, ये रिपोर्ट निकालने का ये बुनियादी मकसद था कि एक तो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को और सरकार को मालूम हो जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो आबादी में 19% उनका शेयर है, ये उनकी बदहाली का फिगर है, उनको आईना दिखाना था। और हम ये डिमांड करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए स्कूल्स ज्यादा खोले जाएं, ताकि इनका जो ड्रॉप आउट रेट है एजुकेशन को आते आते, वो उसको कम से कम उसका आधा तो रहे। ये तो माने 4% क्या बताता है। बैंक ज्यादा खोले जाएं मुस्लिम इलाकों में। तीसरे ये कि जो अगर उत्तर प्रदेश से जो माइग्रेशन होता है, पलायन होता है, जो लोग बाहर जाते हैं, उसमें 51% मुसलमान सबसे ज्यादा जाते हैं प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। उनके लिए सरकार कोई स्कीम नहीं बनाती है। ये 3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना जरूरी है। तो ये एक मकसद था इन 3-4 अहम चीजों को सामने लाने का। मैं बहुत सी बातें पॉलिटिकल कर सकता हूं, मगर जब हमारे जिम्मेदार स्कॉलर्स यहां बैठे हुए हैं, उन्होंने डेटा के जरिए उन तमाम बातों को बता दिया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी भी हुई और डेलिबरेटली उनको बैकवर्ड रखा गया। और चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उठाने के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ डराकर, फुसलाकर